نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز طالبات، ہم ایڈرنل گلینڈ پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا it is also known as suprarenals. It is also known as suprarenals یا ان کو ہم کہتے ہیں رینل ایڈرینلز چونکہ یہ کڈنی کے اوپر ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اٹس اے conical gland with two distinct portions. Outer portion is called as adrenal cortex and inner portion is called as adrenal medulla. یہ جو ایڈرنل میڈیولا ہے آج ہمیں یہی پڑھنا ہے. ایڈرنل کارٹیکس آپ نے کل پڑھا یا ہم اس کے دو پارٹس کر سکتے ہیں. اے پارٹ میں ایڈرینل کارٹیکس پڑھا ہم نے. ایڈرینل کارٹیکس آپ نے دیکھا it secretes 3 sets of hormones, namely glucocorticoids, mineralocorticoids and sex corticoids. ان کی ایگزامپل آپ کو یاد ہوں گی. اس کی ہے کورٹیسول, اس کی ہے ٹیسٹوسٹیرون, ایلڈوسٹیرون, اس کی ہے ٹیسٹوسٹیرون, ایسٹروجن, پروجسٹرون. یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے ٹھیک سے, یہ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ جو ہے these are male sex hormone, these are female sex hormone, estrogen and progesterone. تو یہ 3 sets of hormones they are secreted by adrenal cortex. اس کے بعد آج کا ہمارا جو موضوع ہے that is adrenal medulla. بیٹا یہ ہارمون, یہ گلینڈ اس گلینڈ کی جتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ انڈیویجول کی باڈی سے ایڈرنل کارٹیکس نکالتے ہیں تو میں نے آپ کو کل بتایا یہ بندہ بچنے والا نہیں ہے. اٹ کین کاز ڈیتھ آف دا انڈیویجول. لیکن ایڈرنل میڈولا کو اب اگر آپ نکالیں گے تو اس کی ڈیتھ نہیں, کیونکہ آپ کی باڈی میں جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ یہ کام کرتا ہے. سمپیتھیٹک نروس سسٹم یہی کام کرتا ہے جو آپ کی باڈی میں ایڈرنل میڈولا کام کرتا ہے. تو یہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. تو یہ دس پارٹ آف ایڈرنل گلینڈ اٹ سیکریٹس 2 similar hormones. ایک کا نام ہے ایڈرنلین, دوسرے کو ہم کہتے ہیں نور ایڈرنلین. ایڈرنلین کا ہم نے دوسرا نام رکھا ہے ایپینیفرین. اس کا نام رکھا ہے نور ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین, ایڈرنلین اور نان ایڈرنلین. یہ جو دونوں ہارمونز ہے they do similar function. یہ سملر, ان کا افیکٹ جو ہے بیسک افیکٹ ان کا سیم ہے. اگر آپ دھیان رہیں آپ کو بات ٹھیک سے سمجھ آئے گی. بہت آسان ہے یہ سمجھنا. ہماری باڈی میں یا کسی بھی اینیمل کی باڈی میں کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہے جس وقت فزیکل سٹرین باڈی میں ہوتا ہے, ایموشنل سٹرین باڈی میں ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہماری باڈی کو مور اماؤنٹ آف انرجی چاہیے. تو ہم اس چیز کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے, اس سٹرین سے اوور کم کرنے کے لیے ہماری باڈی میں جو ہے یہ ایڈرنلین نکلتا ہے. جب بھی باڈی میں سٹرس کنڈیشنز پیدا ہوتی ہوں, آپ پڑھیں گے پلانٹ ہارمونز, وہاں پہ آپ پڑھیں گے ایبسسک ایسڈ. اس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ سٹرس ہارمون. یہ تب نکلتا ہے جب سٹرس کنڈیشنز ہو, جب ایٹماسفیئر میں واٹر کی کمی ہو, جب سن لائٹ کی کمی ہو. تو یہ کیا کرواتا ہے, اسے جو پیڑ کے پتے ہیں گر جاتے ہیں, سینس ہوتی ہے, فروٹس رائپن ہو جاتے ہیں, چونکہ ایسا سیزن آنے والا ہوتا ہے جس میں آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہے, سن لائٹ اویلیبل نہیں ہے. تو اس چیز سے فیس کرنے کے لیے جو پلانٹ ہے ایک ہارمون بناتا ہے ایبسسک ایسڈ, سٹرس ہارمون. ان دا سملر فیشن ہیومن باڈی میں یا اینیمل باڈی میں
एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, दे आर सिट्रस हार्मोन्स। ये आपकी बॉडी की को सिट्रस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। यूजुअली हमारे पास सिट्रस कंडीशन 3 होती है। आप देखिए जरा, एक को हम कहते हैं फाइट। जब बॉडी को कोई बहुत बड़ा काम, जैसे आपको किसी के साथ लड़ाई करनी है, कुछ हो गया तो एकदम से आपकी बॉडी में आपको किसी ने बुरा भला कहा, या आप खेलते खेलते किसी को मुंह से गाली निकल जाती है, फिर आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम आपकी आंखें लाल हो जाती है और जिस्म सुर्ख हो जाता है, ये जो आपके एक्सटर्नल पिन्ना है ये सुर्ख हो जाते हैं, आपके बदन के जो बाल है ये खड़े हो जाते हैं, आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, वेजो कंट्रैक्शन, वेजो डायलेशन कहीं पे होती है, कंट्रैक्शन कहीं पे होती है, जो आपकी बॉडी का ग्लाइकोजन है वो फटोफट ग्लूकोज में चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक सिट्रस पैदा होता है जिसको आप फाइट कहते हैं। फाइट इज ए सिट्रस कंडीशन। इस सूरत में आपकी बॉडी को मोर एनर्जी चाहिए, आपकी मसल्स को मोर एनर्जी चाहिए टू ओवरकम द सिचुएशन जो आपको फाइट करनी है। इसी तरह एक और कंडीशन है, इसको हम कहते हैं फाइट फियर। जब आप घबरा जाते हैं, जब आपको डर पैदा होता है, अचानक आपके सामने शेर आ गया, तो आप देखिए आपकी बॉडी का एकदम से आपका हार्ट बीट तेज होने लगता है, ब्लड प्रेशर तेज होने लगता है, या और कोई कंडीशन, कोई धमाका हो गया, एकदम से आपकी बॉडी में एक अजीब चेंज पैदा होती है। अगर आपके साथ कभी ऐसा वाक़ा पेश आया हो, आपने ये चीज बहुत बार विजुलाइज की होगी कि जब भी कभी फाइट की कंडीशन होती है या फाइट की खौफ की कंडीशन होती है, तो आपकी बॉडी में कुछ अजीब गरीब हरकतें होती है। एक चीज तो कम से कम आपको सबको पता होगी कि या तो बॉडी का जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज होता है, और हार्ट बीट तेज होने से बीपी भी तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाता है, और पीपल ऑफ आई जो है ये एकदम से डायलेट करता है, और जो मसल्स है आपकी, जो आपकी बॉडी हियरस है ये एकदम से खड़े हो जाते हैं, और बहुत सारी चेंजेस है इसके साथ साथ। तो फाइट और एक चीज है, इसको हम कहते हैं बेटा फ्लाइट कंडीशन भी आप एक खुशी का इजहार जब आप कहते हैं, एक बाप को बताया जाता है, गरीब बाप को, कि आपका बेटा उसने फर्स्ट डिवीजन लाया है, उसने केएस पास किया है, उसने आईएएस क्रैक किया है, तो हंसने के बजाय वो रोने लगता है। ये उसके इख्तियारात में नहीं है, अंदर जो हार्मोन उसका तूफान बरपा होता है वो इसकी इमोशंस को खुद ब खुद कंट्रोल करता है। और इस तरह से आपने बहुत बार देखा होगा, एक इंसान गुस्से की हालत में बहुत कुछ बातें कहता है, अपने बड़ों को भी खरी खोटी सुनाता है, लेकिन बाद में इससे जब पूछते हैं भाई आपको क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों किया, वो कहता है मुझे पता ही नहीं है, मेरे जहन में ही नहीं है, मैंने अपने बाबा जान के साथ गुस्ताखी की है, अपने बड़े भाई के साथ। ये क्या है, इसको आप आजकल इंग्लिश में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, एबनॉर्मल एड्रेनलिन सिक्रीशन। तो एड्रेनलिन आपकी बॉडी की इमोशंस को, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम एड्रेनलिन चूंकि ज्यादा निकलता है, एड्रेनलिन इज मोर सिक्रेटेड देन नॉर एड्रेनलिन, इसलिए इसको हम कहते हैं 3F हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये वो कंडीशंस है जिनसे आपकी बॉडी में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पैदा होता है, और इस चीज से बचने के लिए ये हार्मोन क्या कहता है, इट काजेज, जो मैंने अभी बताया, इट काजेज इंक्रीज्ड हार्ट बीट, इट काजेज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इट काजेज वेजोडाइलेशन, इट काजेज conversion of glucose, conversion of glycogen into glucose for supply to body, and it also causes squeezing of pancreas and liver to release whole amount of blood into the veins. So there is a great rush of blood in your body, and sometimes there occurs sweating also in these conditions. तो इन कंडीशन से बॉडी को बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी में एड्रेनलिन जो है ये निकलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिट्रस हार्मोन या सिट्रस हार्मोन। और एड्रेनल ग्लैंड को, स्पेशली एड्रेनल मेडुला को हम कहते हैं emergency gland because of adrenaline, because of the functions of adrenaline. It is also called as gland of emergency या emergency gland of
इमरजेंसी, ये आपकी बॉडी का इमरजेंसी ग्लैंड है। जब भी आपकी बॉडी में कोई इमरजेंसी पैदा होती है, लाइक फाइट इमरजेंसी, फ्लाइट इमरजेंसी, इस वक्त आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेंथ पैदा होता है, इमोशनल स्ट्रेंथ पैदा होता है। उस चीज से ओवरकम करने के लिए ये एड्रेनलिन हमारी बॉडी में बहुत बड़ा काम करता है, ताकि हमारी बॉडी फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ सके, इस स्ट्रेन को दूर कर सके। जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स में सिट्रस हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड, जिस तरह वहां पे वो बॉडी का स्ट्रेन प्लांट को सिट्रस कंडीशन से बाहर निकालता है, इसी तरह एड्रेनलिन हमारी बॉडी को सिट्रस कंडीशन से बाहर निकालता है। इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है एड्रेनल मेडुला। उम्मीद है अल्लाह ने जिंदगी दी और अल्लाह ने मोहल्लत दी। अगले लेक्चर में हम गोनाड्स पढ़ेंगे, उसका आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टेस्टिस एंड ओवरीज का, और उनका हार्मोन जो उनका ग्लैंडुलर फंक्शन है वो पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।